ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل میان جی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سیرت النبی، ذکر چند جانثاروں کا۔ ماں نے دنوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائیں، آخر عامر رضی اللہ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا، لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اوراس وقت تک کچھ نہ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جا۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ اب کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرانین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ بصر کے بازار میں گیا، میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے۔ اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے، ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے، اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہم۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، میں ایک دن عقبہ بن ابی معوط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اب کے ساتھ تھے۔ اب نے پوچھا، کیا تمہاری پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔
लेकिन मैं तो अमीन हूं, यानी ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बिक्री है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हां, एक ऐसी बिक्री है। मैं इस बिक्री को अब के करीब ले आया। इसके अभी थन पूरी तरह नहीं निकले थे। अपने इसकी थनों की जगह पर हाथ फेरा, इसी वक्त इस बिक्री के थन दूध से भर गए। ये वाकया दूसरी रवायत में यूं बयान हुआ है कि इस बिक्री के थन सूख चुके थे। अपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए, वहां बैठकर अपने बिक्री का दूध दोहा। अपने वो दूध अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में अपने खुद पिया, फिर अपने बिक्री के थन से फरमाया, सिमट जा। चुनांचे थन फौरन ही फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने रसूल का ये मौजिज़ा देखा तो आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताइए। अपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्ला बिन मसूद बाप की बजाय माँ की तरफ से ज्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नाम अब्द था। उनका कद बहुत छोटा था, निहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा उन पर हंसने लगे तो अपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी है। उन्हीं के बारे में नबी करीम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी इसी चीज पर राजी हो गया जिस पर इब्न अब्द यानी अब्दुल्ला इब्न मसूद राजी हो गए, और जिस चीज को अब्दुल्ला बिन मसूद ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी इसको नागवार समझा। आप उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, उनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे, इसीलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम के आगे आगे साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। आप जब सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु आपको जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। उनकी उन्हीं बातों की वजह से बाज सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम में मशहूर था कि ये रसूल के घराने वालों में से हैं। उन्हें अपने जन्नत की बशारत दी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है। इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फायदे के तौर पर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल मियां जी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस्लामी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सीरत अल नबी, जिक्र चंद जानिसारों का। माँ ने दिनों भाइयों को बहुत तकालीफ पहुंचाई। आखिर आमिर रजी अल्लाह अन्हु तन आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर रजी अल्लाह अन्हु के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज हजरत साद बिन इब्बी वकास रजी अल्लाह अन्हु घर आए तो देखा माँ और आमिर रजी अल्लाह अन्हु के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा इस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेगी और ना खाना खाएगी और ना पानी पाएगी। हजरत साद बिन इब्बी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने यह सुनकर कहा, अल्लाह की किस्म माँ, तुम इस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और उस वक्त तक कुछ ना की पियो जब तक कि तुम जहन्नम का ईंधन ना बन जा। गरज उन्होंने माँ की कोई परवाह ना की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की कोशिशों से हजरत तलहा तीमी रजी अल्लाह अन्हु भी इस्लाम ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हुए। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने इस्लाम लाने का खिलकर ऐलान कर दिया। उनका ऐलान सुनकर नौफल इब्न अदुये ने उन्हें पकड़ लिया। इस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। इसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। इसकी इस हरकत पर उनके कबीले बन्नु तमीम ने भी उन्हें न बचाया। अब चूंकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए उन्हें कुरानैन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए। नौफल बिन अदुये के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए अल्लाह, इब्न अदुये के शर से हमें बचा।
हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं। मैं एक मर्तबा बसर के बाजार में गया, मैंने वहां एक राहिब को देखा। वो अपनी खानका में खड़ा था और लोगों से कह रहा था, इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो कि इनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है। मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूं हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर इसने कहा, क्या अहमद का ज़हूर हो गया है? मैंने पूछा, अहमद कौन? तब इस राहिब ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये इसका महीना है, वो इस महीने में ज़ाहिर होगा, वो आखिरी नबी है। इसके ज़ाहिर होने की जगह हरम है और उसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहां बागात हैं, सब्ज़ाज़ार हैं। इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेजी के साथ वहां से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुंचा। यहां पहुंचकर मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई नया वाकया भी पेश आया है? लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है। अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाकया सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए। इसी वक्त में भी मुसलमान हो गया। ये हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में से है, यानी जिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, उनमें से एक है। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कोशिशों से जिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कलमा पढ़ा, उनमें से 5 अशरा मुबशरा में शामिल हैं। वो ये हैं हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हुम। बाज़ ने इनमें छठे सहाबी का भी इजाफा किया है, वो हैं हज़रत अबू उबैदा बन जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु। उन हज़रात में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम कपड़े के ताजिर थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जानवर ज़बह करते थे और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु तीर बनाने का काम करते थे। उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूं बयान करते हैं, मैं एक दिन अक़बा बिन इब्बी माउद के ख़ानदान की बकरियां चरा रहा था। इसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी अब के साथ थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो अमीन हूं, यानी ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बिक्री है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बिक्री है। मैं इस बिक्री को अब के करीब ले आया। इसके अभी थन पूरी तरह नहीं निकले थे। अपने इसकी थनों की जगह पर हाथ फेरा, इसी वक्त इस बिक्री के थन दूध से भर गए। ये वाकया दूसरी रवायत में यूं बयान हुआ है कि इस बिक्री के थन सूख चुके थे। अपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए, वहां बैठकर अपने बिक्री का दूध दोहा। अपने वो दूध अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में अपने खुद पिया। फिर अपने बिक्री के थन से फरमाया, सिमट जा। चुनांचे थन फौरन ही फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने रसूल का ये मौजिज़ा देखा तो अब से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताइए। अपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्ला बिन मसूद बाप की बजाय माँ की तरफ से ज्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नाम अब्द था। उनका कद बहुत छोटा था, निहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा उन पर हंसने लगे तो अपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी है। उन्हीं के बारे में नबी करीम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी इसी चीज पर राजी हो गया जिस पर इब्न अब्द यानी अब्दुल्ला इब्न मसूद राजी हो गए, और जिस चीज को अब्दुल्ला बिन मसूद ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी इसको नागवार समझा। आप उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, उनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे, इसीलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम के आगे आगे साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे।
आप जब सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु आपको जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। उनकी उन्हीं बातों की वजह से बाज सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम में मशहूर था कि ये रसूल के घराने वालों में से हैं, उन्हें अपने जन्नत की बशारत दी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है, इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फायदे के तौर पर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह अन्हु ईमान लाए।